Uh, Assalamualaikum students. So today we will discuss the second element of marketing mix, which is price. Or in last class we done discussing about product and the levels of product and different product related decisions, जिसमें हमने individual product and service decisions discuss किए थे, product line decisions discuss किए थे, product mix decisions discuss किए थे, and in the last we discussed about product life cycle. सो अनफॉर्चुनेटली इससे पहले सेशन हमारा डिसकंटिन्यू हो गया था. ब्रीफली हम प्राइसिंग को डिस्कस कर चुके हैं. थोड़ा सा उसको रिपीट कर देते हैं कॉन्सेप्ट को, ताकि एक टेम्पो दोबारा से कंटिन्यू हो जाए. ठीक है. सो व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज द मॉनेटरी अमाउंट दैट अ कस्टमर पे इन ऑर्डर टू गेट द प्रोडक्ट, और वी कैन से दैट इट इज the final payment or the monetary value of a product. So we were discussing about the consideration in setting price. So there are two major considerations in setting right price for the product. The first one is the consumer perception of value, and the second one is the product cost. So कोई भी organization किसी भी product के लिए जो specific price set करेगी, it will fall somewhere between these two extremes, which are product cost and customer perception of value. So what is customer perception of value? Like customer perception of value is what customer perceive to gain from the product. Like what are the benefits, what will be the value that a customer will receive in order to gain the product. And on the second extreme, we have product cost. So like these two extremes set the price ceiling and price floor in setting prices. So if customer perceive that a product price is greater than its value, then it will not purchase the product. अभी हमने जैसे लास्ट सेशन में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस उसकी परसीव वैल्यू से ज्यादा होगी, देन कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे. इसी तरह अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस उसकी कॉस्ट से कम होगी, उसकी कॉस्ट से कम सेट की जाएगी, तो वो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगी. सो दैट्स व्हाई द राइट प्राइस will be the price that deliver both the value to the customer and profits to the company. It means that the right price will fall somewhere between these two extremes, between the price floor and between the consumer perception of value. And we also discussed that there are certain internal and external factors जो कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को इन्फ्लुएंस करते हैं. लाइक कंपैटिटर्स की क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हैं, उनकी प्राइसेस क्या है, कंपनी की ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी ऑब्जेक्टिव क्या है. लाइक कंपनी ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेज बहुत ज्यादा मैटर करता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, देन प्रोबेबली कंपनी उसके लिए ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगी जो जिससे वो सिर्फ मार्केट में सर्वाइव कर सके. ठीक है. और अगर आपकी मेजोरिटी प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शनरी स्टेज में है या ग्रोथ स्टेज में है, देन कंपनीज ऐसी उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सेट करेंगी जिससे वो मार्केट में पेनिट्रेट कर सके. सो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको कंसिडर करके कंपनीज अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज सेट करती हैं. On the other hand, there are some other factors like nature of the market and demand. Market में competition की क्या nature है, either pure competition है या monopolistic competition है या oligopolistic competition है. इसी तरह economic conditions क्या है, competitors की strengths क्या है, ठीक है, government का क्या role है, social concern क्या है. So these are some other factors that strongly influence company pricing strategies. ठीक है. What are two major considerations? First, product cost, and second is the consumer perception of value. So this figure basically suggests three major pricing strategies: customer value-based pricing, then cost-based pricing, and competition-based pricing. So पहले हम इन
तीन मेजर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे, व्हिच आर वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड कंपैटिटर्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। और देन हम मूव करेंगे डिफरेंट अदर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, जिसमें हमारे पास न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग होगी एंड प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सो वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, so value pricing strategy, let me show you some slides. ठीक है, सो वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली कस्टमर की वैल्यू परसेप्शन को कंसिडर करती है इन सेटिंग प्राइसेस। लाइक वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में ऑर्गेनाइजेशन प्राइसेस सेट करती हैं इन अकॉर्डेंस विद कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी आपके पास स्टेटस प्रोडक्ट्स हैं या एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं या आर्ट पीसेस हैं, दे आर यूजिंग वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल, योर परसीव्ड वैल्यू फॉर एप्पल आईफोन would be different as compared to your perceived value for Q Mobile. So Apple iPhone is using value pricing strategy. Value pricing strategy in the sense that in value pricing strategy, customers are ready to pay whatever company charge. Like they are willing to pay whatever company charge. आपने देखा होगा कि Apple जब अपने न्यू वर्जन आईफोन के रिलीज करता है, तो उनके जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं उनकी प्राइसेस उनके ओल्ड वर्जन से ज्यादा होते हैं, बिकॉज दे नो दैट कस्टमर की जो परसेप्शन ऑफ वैल्यू है एप्पल आईफोन के लिए, इट्स सो हाई दैट दे आर विलिंग टू पे व्हाटएवर कंपनी विल चार्ज। ठीक है, सो कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज कस्टमर ड्रिवन, कस्टमर फोकस्ड, जिसमें कस्टमर की जो परसेप्शन है उसके बेसिस पे कंपनी प्राइसेस सेट करती है रादर देन द प्रोडक्ट कॉस्ट। इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि किसको कंसिडर किया जाता है कि कस्टमर की वैल्यू परसेप्शन क्या है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करें, जैसे क्यू मोबाइल। ठीक है, क्यू मोबाइल के हमारी परसेप्शन क्या है, परसीव वैल्यू क्या है कि ये मिडिल क्लास लोगों के लिए या लोअर मिडिल क्लास लोगों का ब्रांड है जो अफोर्डेबल या चीप रेट्स में या चीप प्राइसेस में सेलफोन सेल करते हैं। ठीक है, बट क्यू मोबाइल ने, अगर आपको याद हो, कुछ अरसे पहले, आई थिंक 10 साल पहले, उन्होंने एक स्मार्टफोन का नया वर्जन मार्केट में लॉन्च किया था, जिसकी प्राइस आई थिंक उन्होंने 80,000 या इससे अबव सेट की थी। ठीक है, सो लाइक उन्होंने एक कस्टमर के माइंड में ऑलरेडी एक परसेप्शन क्या बिल्ड कर ली थी कि ये am I audible clearly? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ठीक है, सो कस्टमर के माइंड में, लेकिन आप इस एग्जाम्पल को अपने ऊपर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं कि कस्टमर के माइंड में एक क्लियर परसेप्शन क्या है क्यू मोबाइल के लिए कि ये एक लो क्लास ब्रांड है या एक मिडिल क्लास ब्रांड है, जो सिर्फ क्या है, जिनके अफोर्डेबल सेट्स हैं, जो ज्यादातर लोग हमारी जो सोशो इकोनॉमिक क्लास है उनको टारगेट करता है। बट देन क्यू मोबाइल ने एक फूलिश मिस्टेक क्या की कि उन्होंने वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की और ऐसे सेट्स मार्केट में लॉन्च किए जिनकी प्राइस जो है वो 80,000 थी या 1 लाख थी, इस रेंज के बिटवीन। सो बिकॉज कस्टमर की परसेप्शन ऑफ वैल्यू उसके लिए इतनी ज्यादा नहीं थी, तो कस्टमर्स ने उन सेट को परचेज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 80,000 रुपीज हो या 1 लाख रुपीज हो, वुड यू बाय क्यू मोबाइल? आप बाय करेंगे क्यू मोबाइल का न्यू सेट? Never. करेंगे? No, ma'am, never. नेवर, कभी भी नहीं, मैम। ठीक है, नहीं करेंगे, बिकॉज आपके माइंड में उसकी वैल्यू ही इतनी है, आपके माइंड में उसकी परसीव्ड वैल्यू इतनी नहीं है कि आप उस पर 80,000 स्पेंड करें, आप उस पर 1 लाख
स्पेंड करें। बट अगर यही प्राइस अगर एप्पल आईफोन चार्ज करता है या 1,50,000 चार्ज करता है या 2 लाख चार्ज करता है, तो कस्टमर्स आर विलिंग टू पे दैट प्राइस, बिकॉज कस्टमर की उसके लिए परसेप्शन ऑफ वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो अगर कोई ब्रांड कस्टमर के माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट कर लेता है, देन वो उस परसेप्शन को प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू चेंज नहीं कर सकता। ऑलवेज रिमेंबर, लाइक आप लोगों ने अपनी परसेप्शन ये चेंज नहीं की कि अगर क्यू मोबाइल का एक्सपेंसिव सेट है तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, बिकॉज कस्टमर के माइंड में ऑलरेडी एक परसेप्शन बिल्ड हो गई है कि क्यू मोबाइल की ये इमेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का अकाउंटेंट क्यू मोबाइल यूज करता है, तो व्हाट डू यू थिंक, उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव भी क्यू मोबाइल यूज करता है? नो, बिकॉज आईफोन एक प्रीमियम ब्रांड है, उसकी एक ब्रांड इमेज है और उसकी ब्रांड इमेज उसकी परसीव्ड वैल्यू को सपोर्ट करती है। सो व्हाट इज वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हम प्राइसेस को सेट करते हैं इन अकॉर्डेंस विद कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू rather than the product cost. ठीक है, so like other decisions, other pricing decisions must start with customer value. लाइक हम ये नहीं कह सकते कि एप्पल आईफोन की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है। एप्पल आईफोन जो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हम क्या कंसिडर करेंगे? कस्टमर की परसेप्शन ऑफ वैल्यू क्या है। बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू से ज्यादा प्राइसेस सेट करने की कोशिश करेगी, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को कभी भी परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, सो आपके माइंड में कोई एग्जांपल रिगार्डिंग वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करती है? मैम बेंटली मोटर्स, मर्सिडीज। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैम अभी क्लियर है आवाज? जी, अभी क्लियर है। मैम जैसे बेंटली मोटर्स हो गई हमारी कार कंपनी, जो लग्जरी कार प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा रोल्स रॉयस हो गई, पटेक फिलिप हो गए, बॉश की एक बड़ी लग्जरी कंपनी है पटेक फिलिप। ठीक है, ज्यादा से जितने लग्जरी ब्रांड्स होते हैं या प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं, वो वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, बिकॉज दे नो कि वो जो भी प्राइस सेट करेंगे कस्टमर उसको विलिंगली स्पेंड करेंगे। ठीक है, सो ऑन द अदर साइड वी हैव कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज टोटली ऑपोजिट ऑफ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि कंपनी किसको कंसिडर करती है? कॉस्ट को, rather देन द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। सिंपली क्या करती है कंपनीज की जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, उसमें एक फिक्स्ड मार्कअप या एक फिक्स्ड रिटर्न अमाउंट या एक फिक्स्ड परसेंटेज ऐड करके अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस सेट करती है। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में। सो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का एक एडवांटेज तो हो सकता है कि कंपनीज अपना जो प्रिडिक्टेड प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट लेवल है, उसको इजीली प्रिडिक्ट कर सकती है। बट कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का एक डिसएडवांटेज ये है कि समटाइम्स कंपनी बहुत सारी जो हिडन कॉस्ट होती है वो उसको इग्नोर कर देती है। ठीक है, कॉस्ट में लाइक वो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती, तो वो उसको उस प्राइस में ऐड नहीं करते। तो समटाइम कंपनी जिसको प्रॉफिट समझ रही होती है वो इवन उसका प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्लियर हुई। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में कंपनी जो प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट होती है उसमें एक फिक्स्ड मार्कअप या एक फिक्स्ड परसेंटेज ऐड करके प्राइसेस सेट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट 80 रुपीज है, तो उस पर 20% का वो मार्कअप या फिक्स परसेंटेज ऐड करके उसकी प्राइस उन्होंने सेट कर दी सिंपली 100 रुपीज। ठीक है, तो इसमें वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ किसको कंसिडर किया जाता है? प्रोडक्ट कॉस्ट को। लाइक लुक एट दिस फिगर 10.2, हियर यू कैन सी के इसमें कंपैरिजन शो किया है बिटवीन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, लाइक कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का स्टार्ट कहाँ से होता है? डिजाइन अ गुड प्रोडक्ट
और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का स्टार्ट होता है असेसिंग कस्टमर नीड्स एंड वैल्यू परसेप्शन, ठीक है। देन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मूव टुवर्ड्स डिटरमिनिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, और यहाँ पे हम क्या डिसाइड करते हैं, सेट द टारगेट प्राइस। कौन सी टारगेट प्राइस सेट करते हैं, जो कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू के साथ मैच करे हो rather than the product cost. So in the third step, in cost based pricing strategy, where we set price on the basis of cost, and in value based pricing strategy we determine cost that incurred. हम सिर्फ कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं बट कॉस्ट के बेसिस पे अपनी प्राइस को फाइनलाइज नहीं करते. सो व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग? वी कन्विंस बायर्स ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू. लाइक यहाँ पे वैल्यू कहाँ आ रही है, सबसे लास्ट में, कि हम कस्टमर को कन्विंस कर रहे हैं अबाउट द प्रोडक्ट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट. बट इन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वी डिजाइन अ प्रोडक्ट टू डिलीवर द डिजायर्ड वैल्यू जो हमने फर्स्ट स्टेप पे आइडेंटिफाई की. ठीक है, जैसे अभी हमने कहा लाइक अदर मार्केटिंग डिसीजंस, प्राइसिंग डिसीजंस मस्ट स्टार्ट विद वैल्यू rather than कॉस्ट. ठीक है, सो यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन यहां तक? मैम जी मैम, किसी भी प्रोडक्ट की पहले हम कॉस्ट रखते हैं, उसके बाद ही हम मतलब कि कस्टमर की परसेप्शन वैल्यूज को देखते हैं ना. देखें, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में जैसा हमने डिस्कस किया, हम पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर की नीड्स क्या है, उनकी वैल्यू परसेप्शन क्या है, देन उसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं और एक प्राइस टारगेट करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में आप जैसे यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स गिवन है, हम कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं थर्ड स्टेप. हम प्राइस पहले सेट कर लेते हैं, जो टारगेट प्राइस होती है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में वो हम सेकंड स्टेप पे ही सेट कर लेते हैं, बट हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं थर्ड स्टेप. क्लियर? यस मिस. अच्छा, सो हमने जो फर्स्ट फिगर डिस्कस की थी कंसिडरेशन इन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, उसमें हमने 3 टाइप्स मेजर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई की थी. वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, एंड द थर्ड वन वाज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है, सो व्हाट इज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में सिंपली क्या होता है कि जितने मार्केट प्लेयर्स होते हैं, जितनी कंपनीज होती हैं, वो कंपैटिटर्स की प्राइस लीड को फॉलो करते हैं. ठीक है, कौन से कंपैटिटर्स की प्राइस लीड को फॉलो करती हैं? जिनकी मार्केट में क्लियर डोमिनेंस होती है या स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर होता है. लाइक आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को कौन डिफाइन करता है? आपके कंपैटिटर्स डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कंपैटिटर नंबर 1 की प्राइस है $90, ठीक है, और जो कंपैटिटर नंबर 2 है जो कि मार्केट लीडर है उसकी प्राइस है $99, सो यू विल सेट योर प्राइस समवेयर बिटवीन $95. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू दिस पिक्चर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपैटिटर 1 की प्राइस है $90 और कंपैटिटर 2 जो मार्केट लीडर है, जिसकी डोमिनेंस पोजीशन है, उसकी प्राइस है $99. सो यू विल सेट द प्राइस not below from competitor 1 and not high from competitor 2. You will set this price somewhere between these two extremes. Like competition based pricing strategy में आप अपने competitors की price lead को follow करते हैं. For example, अगर हम PepsiCo और Coca-Cola की ब्रांड बात करें, ठीक है, both brands compete against each other over pricing, quality and features. और उनकी प्राइजेस अप्रोक्सीमेटली क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं. और अगर किसी एक ब्रांड की प्राइसिंग में चेंज आता है तो सेकंड ब्रांड या सेकंड कंपैटिटर्स भी उसकी प्राइस में वेरिएशन को या प्राइस में चेंज को फॉलो करता है. ठीक है, सो वी डिस्कस्ड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी.
बट देयर आर अदर मेजर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो अभी हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल, अच्छा ये आपके पास चैप्टर नंबर 11 में है. जो अभी हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे वो हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉर अ न्यू प्रोडक्ट. लाइक कोई भी कंपनी जब किसी न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, then they have two options for setting prices. Either skimming pricing strategy or either penetrating pricing strategy. ठीक है. ये बहुत ज्यादा कोर कॉन्सेप्ट्स हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के, और ये कॉन्सेप्ट्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. सो व्हाट इज मार्केट skimming pricing strategy? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ skimming? skimming किसको कहते हैं? Then you will probably better understand this strategy. What is the meaning of skimming? Mubarika? Saddam? Kindly interact किया करें ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे आपको क्लियरली मेरी आवाज जा रही है. Am I clearly audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what is the meaning of skimming? अच्छा, skimming means what we can say the removal of a substance from liquid. जैसे अगर हम इसको सिंपल एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करें, जैसे आप जब भी दूध बॉईल करते हैं, ठीक है, जब आप दूध बॉईल करते हैं तो आप देखते हैं क्रीम की एक लेयर उसके ऊपर आ जाती है, ऐसा ही है ना. सो वो जो लेयर है वो होती है स्किमिंग. लाइक स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की हाई प्राइसेस सेट करती हैं, इनिशियली हाई प्राइसेस सेट करती हैं ताकि वो मार्केट से जितनी भी रेवेन्यू लेयर है या जितना प्रॉफिट है उसको स्किम कर सके. ठीक है, स्किम कर सके. जिस तरह से हम मिल्क से जब क्रीम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हम अपनी प्रोडक्ट्स की हाई प्राइसेस सेट करते हैं ताकि हम उसको रेवेन्यू लेयर को मार्केट से स्किम कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर सके. बट मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में आपकी क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इमेज मस्ट सपोर्ट द प्राइस. आपकी प्रोडक्ट की इमेज और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के साथ मैच करे. जैसे अगेन यहाँ पे क्यू मोबाइल की एग्जांपल फिट आती है कि क्यू मोबाइल स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और इमेज उस प्राइस को सपोर्ट नहीं करती. ठीक है. सो स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हम इनिशियल हाई प्राइसेस सेट करते हैं. हाई प्राइसेस सेट करते हैं ताकि हम मार्केट से रेवेन्यू लेयर को या प्रॉफिट को स्किम कर सकें, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें. एंड ऑन द अदर साइड यू मस्ट कंसिडर कि कस्टमर विलिंग भी हो आपसे उस प्रोडक्ट को उस प्राइस पे परचेज करने के लिए. ठीक है. सो सम कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, लाइक वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरलिंक नहीं करें. वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी समथिंग डिफरेंट जिसमें हम कस्टमर की वैल्यू परसेप्शन को कंसिडर करते हैं. बट स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हम हाई प्राइसेस सेट करते हैं ताकि हम रेवेन्यू लेयर को स्किम कर सकें. यस, वी कैन से दैट एप्पल आईफोन इज यूजिंग स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. ऐसा नहीं है कि एप्पल आईफोन स्ट्रैटेजी वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करिए तो हम they are using multiple pricing strategies, like they are using skimming pricing strategy. On the other side, they are also using value pricing strategy. They are play with the value perception of the customer and they also want to skim the revenue layer from the market. अच्छा, skimming pricing strategy ज्यादातर उन products के लिए suitable होती है जो जिनका short life cycle होता है. For example, आपको याद होगा जब हम product life cycle discuss कर रहे थे
तो हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो बहुत क्विकली अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे करती हैं। सो वो प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड तक रहती हैं, तो वो अपने प्रॉफिट को कवर करने के लिए, अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स की हाई प्राइसेस सेट करती हैं। अच्छा, वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, व्हाट डू यू थिंक, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अपना लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा क्विकली कंप्लीट करते हैं? ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। कौन से ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट? यस, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं वो अपना लाइफ साइकिल क्विकली इसलिए कंप्लीट करती हैं बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी उनको रिप्लेस कर देती है, ठीक है, या फिर क्या होता है, इंटीमेसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इमिटेट होने लगती है प्रोडक्ट, बहुत सारी कंपनीज उसको कॉपी कर लेती है। सो जो इनिशियल प्रोडक्ट होते हैं, जो इनिशियल लॉन्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपनी प्रोडक्ट्स की हाई प्राइसेस सेट करती है ताकि वो मैक्सिमम रेवेन्यू उससे कवर कर ले, ठीक है। जैसे अगर हम एप्पल आईफोन की ही बात करें, एप्पल आईफोन का हर सेट उसके जो प्रीवियस सेट से प्राइसेस में हाई होता है, बिकॉज क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लेयर स्किम करना चाहते हैं फ्रॉम द मार्केट। सो स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूजुअली, जिससे आपकी जितनी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं या टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनका लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा सीवियर होता है, वो प्रोडक्ट्स स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, ठीक है। सो फॉर न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वी हैव अनदर ऑप्शन विच इज मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड देन पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेशन और पेनिट्रेटिंग? ये तो हमने एनसॉफ मैट्रिक्स में भी डिस्कस किया है। गोइंग थ्रू समथिंग, किसी कार पार होना, ठीक है, इन्फिल्ट्रेट करना, तेजी से हम उर्दू में कह सकते हैं सरायत करना। सो पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज टोटली ऑपोजिट ऑफ स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। इसमें कंपनीज इनिशियली लो प्राइसेस सेट करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, ताकि वो मेजॉरिटी कस्टमर या जो उनकी टारगेट मार्केट का मैक्सिमम पोर्शन है उसको कैप्चर कर सके, डीपली मार्केट में पेनिट्रेट कर सके, सेल्स वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर सके और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। अच्छा, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी कौन सी प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल होती हैं? अगेन वो प्रोडक्ट्स जो जिनका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, लाइक दे हैव लॉन्ग एंटिसिपेटेड लाइफ साइकिल। जैसे मास मार्केट जो प्रोडक्ट होती हैं, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को लाइक दे हैव लॉन्ग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वो मेच्योरिटी स्टेज में स्पेशली एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक स्पेंड करती है। जैसे अगर हम पेप्सिको की बात कर रहे थे, कोका कोला की बात कर रहे थे, हम टपाल की बात करें या नेस्ले की बात करें, कॉल्फर्स की बात करें, ये दे ऑल आर अ काइंड ऑफ मास मार्केट प्रोडक्ट्स जिनका जो एंटिसिपेटेड लाइफ साइकिल है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है। सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में प्राइसेस स्टेबल होती हैं because they have to compete for a long time period in the market, ठीक है। सो जितनी आपकी, हम ये कह सकते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैं या मास मार्केट प्रोडक्ट्स हैं या एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं जिनको कस्टमर फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं, उनके लिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सेट की जाती है, लाइक इनिशियली लो प्राइस, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और डीपली पेनिट्रेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जितने आपकी ये सेल्यूलर नेटवर्क्स हैं, मोबिलिंग है, जैज है, वारिस है, दे ऑल आर यूजिंग पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। यस, अच्छा, जब आपकी मीटिंग एंड हो जाए, ठीक है, तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि हम सेकंड सेशन स्टार्ट करें, ठीक है। जो जितने भी सेल्यूलर नेटवर्क्स हैं, दे आर यूजिंग पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। So any other example from your side? Any other brand that is using penetrating pricing strategy?
मैमूना, फुरकान रशीद, कोई ऐसा ब्रांड जो पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करे? बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। अली मोहम्मद, मैम Q&Q वॉचेस। जी Q&Q ठीक है, इसके अलावा वॉच कंपनी है। बहुत सारी कंपनीज हैं, ये बाकी स्टूडेंट्स क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे? अली मोहम्मद, मोहम्मद इकबाल, मैमूना, पेप्सिको है, कोका कोला है, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जी यूनिलीवर है। यूनिलीवर तो एक कंपनी है। यस, यूनिलीवर इज यूजिंग पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बट नॉट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके, सो इस अभी जो हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे दैट विल बी फॉर द टोटल प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रोडक्ट मिक्स। व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? Product mix is the set of all products or all categories that a company offer to its customer. So अभी हम जो pricing strategies discuss करेंगे that will be for the product mix. जैसे product mix की हमने 4 dimensions discuss की थी: product line, product depth, product width and product consistency. जो अभी 5 pricing strategies हम discuss करेंगे वो इस कॉन्टेक्स्ट में होंगी कि किस तरह से हम ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। सो दीज प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इंक्लूड प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इंक्लूड प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग. But before starting these pricing strategies, I would like to know from your side what is product line. What is product line? ये last class में हमने ये concept बहुत detail में discuss किया. Because if you don't know what is product line, you won't understand what is product line pricing strategy. Who will explain what is product line? मैम प्रोडक्ट जैसे मैम यूनिलीवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए इनकी प्रोडक्ट लाइन हो गई, यानी ग्रुप ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स दैट द कंपनी ऑफर्स टू इट्स कस्टमर इज अ प्रोडक्ट लाइन. No. Product line is not the group of all products that a company offers to its customer. ये तो आप product mix के बारे में बता रहे. Product mix is the combination of all items that a company offers to its customer. What is product line? Within product mix, we have one dimension called product line. For example, अगर हम PepsiCo की बात करें, जी different varieties of same product. For example, से आपने बताया कि जैसे पेप्सी हो गई, पेप्सी डाइट आ गई इसमें, और जिसमें भी वेरिएंट एक ही सेम प्रोडक्ट की हो गई, यानी वो प्रोडक्ट लाइन. वो तो प्रोडक्ट डेप्थ है, वो तो प्रोडक्ट डेप्थ बता रहा हूँ. प्रोडक्ट लाइन is the set of all products that are closely related with each other. That are closely related with each other. They perform the similar functions. They have the similar target audience, and they are sold at given price range. For example, अगर हम PepsiCo की बात करें तो PepsiCo की different product lines हैं, ठीक है. सॉफ्ट ड्रिंक है, स्नैक्स हैं, जूसेस हैं, ये इसके डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है. अब सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट लाइन में उसके जितने डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे पेप्सी है, 7up है, मिरिंडा है, दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर. दे हैव द सिमिलर फंक्शंस. दे आर ऑफर्ड टू द सेम टारगेट ऑडियंस. इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन, ठीक है. आप प्रोडक्ट लाइन को मिक्स नहीं करें विद प्रोडक्ट मिक्स और ईदर विद प्रोडक्ट depth. Product line is something different.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम जे डॉट की बात करें तो जे डॉट के डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं. एक परफ्यूम उनकी एक डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, उनका मेकअप लाइन डिफरेंट है, ठीक है, फिर उनकी अपैरल लाइन डिफरेंट है, उनकी एसेसरीज की लाइन डिफरेंट है. सो परफ्यूम्स की लाइन में जितने उनके परफ्यूम्स हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, सो इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन. आप कोई कंफ्यूजन है? नो मैम. ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए बिकॉज हमने ये लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया. सो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग है आपके पास, तो उस लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग को, ठीक है, आप लोग कंसंट्रेशन के साथ दोबारा सुनिए और इन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज कीजिए, बिकॉज अब जो कि हम ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं तो हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे. सो व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? आप जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कंपनीज कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन प्रोड्यूस करती हैं इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल पेप्सिको है, तो पेप्सिको की प्रोडक्ट लाइन है सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक में सिर्फ पेप्सी एक ब्रांड नहीं है, उसके मल्टीपल ब्रांड्स हैं. सो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में कंपनी किसको कंसिडर करती है? इट सेट्स प्राइस अक्रॉस द एंटायर प्रोडक्ट लाइन. ठीक है, in product line pricing strategy companies set prices across the entire product line को consider करती है, but within that product line company also take into account कि जो different इसमें products हैं, एक product line है आपके पास, multiple products होंगे, so हर product के cost में क्या difference है, ठीक है, customer की perceived value हर product के लिए कैसी है, और कंपैटिटर्स की प्राइसेस. फॉर एग्जांपल अगर जे डॉट की एक प्रोडक्ट लाइन है परफ्यूम्स की, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट परफ्यूम्स हैं, सो हर परफ्यूम की कॉस्ट डिफरेंट है, हर परफ्यूम के लिए कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू डिफरेंट है. मेरी जो परसीव्ड वैल्यू उसके एक परफ्यूम उरूसा के लिए है वो सफायत के लिए नहीं है. सो अगर कंपनीज प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगी, सो कंपनीज किसको कंसिडर करेंगी कि उसकी प्रोडक्ट लाइन में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, सेकंड कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू जो उसके डिफरेंट फीचर्स के लिए है उसमें क्या डिफरेंस है, और कंपैटिटर्स की प्राइसेस में क्या डिफरेंस है. ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हम एंटायर प्रोडक्ट लाइन के लिए प्राइसेस सेट करते हैं, बट बिफोर सेटिंग प्राइसेस हम किसको कंसिडर करते हैं कि प्रोडक्ट लाइन में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, कस्टमर की परसीव वैल्यू में क्या डिफरेंस है, और कंपैटिटर्स की प्राइसेस में क्या डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है मिस्टर क्लीन. मिस्टर क्लीन का नाम सुना है किसी ने? मिस्टर क्लीन इट्स P&G का एक फेमस ब्रांड है, इट्स लाइक ऑल पर्पस क्लीनर, ठीक है, क्लीनर ब्रांड है. सो उनकी एक प्रोडक्ट लाइन है कार वॉश. सो उस कार वॉश प्रोडक्ट लाइन में उनके डिफरेंट पैकेजेस हैं, जैसे उनका एक पैकेज है ब्रोंज पैकेज, ठीक है, सो उस ब्रोंज पैकेज में सिर्फ उनकी बेसिक एक्सटीरियर वॉश इंक्लूड है और उसकी प्राइस है $5. देन उनका एक है गोल्ड पैकेज, तो गोल्ड पैकेज में उनके इंटीरियर एक्सटीरियर वॉश है और उनका है, उसकी प्राइस है $12. देन उनका एक सिग्नेचर पैकेज है, उसकी प्राइस है $27. सो इट मींस ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट लाइन प्राइसेस में, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हम सारी प्रोडक्ट्स की एक ही प्राइस सेट करेंगे. नो, हम हर प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइसेस सेट करेंगे, बट हम अंडरस्टैंड करेंगे किस बेसिस पे उनकी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है और फीचर्स में क्या डिफरेंस है. जैसे हमने मिस्टर क्लीन की बात की, मिस्टर क्लीन की एक प्रोडक्ट लाइन है कार वॉश, बट उसमें वो डिफरेंट पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं, जैसे बेसिक है, ठीक है, गोल्ड पैकेज है, सिग्नेचर वॉश है, और हर पैकेज की प्राइसेस डिफरेंट है. सो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में वी सेट प्राइसेस अक्रॉस द एंटायर प्रोडक्ट लाइन, बट